एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम. If my father is introducing me and Ayush Bhaiya to someone, like ये इनसे मिलिए, ये मेरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है. The only reason me and Bhaiya are able to have our little achievements in life is because there was no pressure on anything. मैं अगर कल फुटबॉल नहीं खेला होता तो बिल्कुल ज़मीन पे डाउन टू अर्थ होकर बैठता है. Age of 5 or 6, I was waking up at 4:30 and going for my early morning runs. Earlier with my father, then with my coach, then with my fellow sports persons, and I think it really kept me going. And अभी भी touch wood मैं normally 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता हूँ. तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, बटर चिकन खा के आना. दिल्ली जा रहे हो, बटर चिकन खा के आना. वो एक बड़ा ही बॉक्स्ड व्यू पॉइंट है. हम सब रोज बटर चिकन नहीं खाते हैं. Let's talk about the most iconic, जो Maddock horror film series. अरे वाह, क्या बात है. And you've been part of such an expansive universe. Your brothers also joined it now. Yes. How does it feel to participate in this kind of like a massive? Yeah, first of all, kudos to Dinesh Vijan and Amar Kaushik for putting this space of filmmaking on the map. इस universe में सबसे अच्छी बात ये है कि यार ये बड़े पर्दे पे ही देखने का मजा आता है. तो इसलिए एटलीस्ट when people used to say कि यार OTT के आने से फिल्म कम देखेंगे लोग, उस स्पेस को भी उन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया है. तो म्यूजिक के बारे में बात करते हैं. What was the first thing that started it? My music journey was so organic that I wasn't trying too hard. I was taking a lot of time to make my music. So I created a story, of course, before writing a song. That goes for all my songs I've released so far. कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ऐ चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कानी भी छोड़, कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए. Welcome to All India Mehfil. थैंक यू सो मच करिश्मा, प्लेजर इज ऑल माइन. मैंने शंकर जी वाला एपिसोड देखा. अच्छा. काफी अच्छा था. प्रेशर में आ गया मैं थोड़ा सा शंकर जी के एपिसोड को देख के. But I love him and I love his show. Yeah, he was absolutely amazing and thank you for giving us the time and being a part of our Mehfil today. Pleasure is all mine. मैं अगर कल फुटबॉल नहीं खेला होता तो बिल्कुल ज़मीन पे डाउन टू अर्थ होकर बैठता है. But my knee is little injured. Yeah. But you wear so many different hats and like you said, right, you were saying offline कि you've entered with so much positive energy and you're like that. You're known कि you know इनकी energy बहुत ही positive है, बहुत ही contagious है. So this is a conscious effort या does it come naturally? Energy positive तो हर एक के लिए situational है. पहली बात तो यही है. But having said that, yeah, I mean, I'm normally in an up tempo mood. That's majorly because I think it majorly comes from my sports background. मैं बचपन से जब से मेरे को याद है अपने school days, I think right from the age of 5 or 6, I was waking up at 4:30 and going for my early morning runs. Earlier with my father, then with my coach, then with my fellow sports persons, and I think it really kept me going. And अभी भी touch wood मैं normally 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता हूँ. Wow. लेकिन हर एक की जिंदगी में एक ऐसी मोमेंट आती है which is like a महफिल, right, where you realize कि ये मेरा रास्ता है, मुझे इस रास्ते पे जाना है. क्या ऐसा कोई मोमेंट था आपके लाइफ में? यार करिश्मा, I think for us as family it really mattered what happened at home. ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए ऐसे ही जर्नी बनती हो, ऐसे ही आइडिया आता हो कि ओके दिस इज़ माय वे फॉरवर्ड. और बट व्हेन वी वर किड्स तो घर पे बातें ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती थी. बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को लेकर, मूवीज़ को लेकर बहुत डिस्कशन होती थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई फादर इज़ इंट्रोड्यूसिंग मी एंड आयुष भैया टू समवन, लाइक ये इनसे मिलिए, ये मेरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है. So you know how it is that the introduction itself is different from how other people will introduce their kids. And जब मैंने बचपन में पहली बार सुना कि ये मेरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, of course you go back home and ask your parents कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कौन है. So I think as far as I remember 1991 की बात होगी, तब फिल्म आई थी हम, बच्चन साहब एंड रजनीकांत साहब टुगेदर. एंड उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था. एंड उसमें बहुत फेवरेट गाना था एक हमारा, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम. सो जब घर पे वापस जाकर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कौन हैं
और उसके बाद आपको वो म्यूजिक सुनाया जाता है उनका, ये तो फिर भी उनके लेटर स्टेजेस यू नो दे वर रियली बिग इन द 80s। सो 91 जो उनको मेन सक्सेस मिली वो 80s में मिली। तो मैंने तो फिर भी उनके जब गाने सुनने शुरू किए तब तक वो बहुत कुछ अचीव कर चुके थे। ऑफ कोर्स न्यू वो साइड ए साइड बी होती थी, है ना। तो 80s की साइड ए होती थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और साइड बी होती थी 90s की। मेरे पापा ने स्पेसिफिकली वो रिकॉर्ड करवा के यू नो कैसेट दी सो दैट वी ऑल कुड लिसन टू हिज देयर सॉन्ग्स। तो घर पे वो अपब्रिंगिंग वैसी थी, तो आपको अपने आप शायद वो मार्गदर्शन मिल गया कि आपको शायद ये करना है लाइफ में आगे जाके। अदरवाइज इट वाज नॉट रियली प्लान्ड कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे म्यूजिक करना है या मुझे होस्टिंग करनी है। देयर वाज सम काइंड ऑफ क्रिएटिव juices flowing at home and I got onto that. When you talk about home and आपने एक इंसिडेंट कहा, लेकिन you grew up in a very typical पंजाबी household. ऐसे कहा जाता है कि जितनी आवाज़ उतना ज़्यादा प्यार होता है पंजाबी घर में. But how was it growing up for you? Just because I laugh loudly आपने No. पंजाबियों के लाउड कल्चर को पकड़ लिया है, बट नहीं यार, I think yeah, I've done a film called Batamiz Gill recently in London. It is on the you know on a typical Punjabi family, you know. When I asked the director कि यार what do you bifurcate this film as, where do you see this, he was like it's a story of a dysfunctional Punjabi family. So ये जो आप बात बोल रहे हो कि ऊंची आवाज में बोलना एटसेट्रा या कुछ जो भी आपने कुछ लाउडनेस की कोई बात करी, आई थिंक वो वहाँ की ह्यूमर में वहाँ की बातचीत में एक डेसिबल लेवल ऊंचा ही रहता है। जैसे मैं हंसता हूँ तो ऊंचा ही हंसता हूँ, मुझसे नहीं नॉर्मल हंसा जाता। सो बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जैसे हो जाता है ना कि यार तुम चंडीगढ़ जा रहे हो बटर चिकन खा के आना, दिल्ली जा रहे हो बटर चिकन खा के आना, वो एक बड़ा ही बॉक्स्ड व्यू पॉइंट है। हम सब रोज बटर चिकन नहीं खाते। सो वो तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर एक बात बहुत ऊंची तरीके से बोली जा रही है, या there are households where people are subtle as well. In the same household there are people who are subtle, there are people who are loud. So yeah. So tell me a special memory from your childhood. तो यार मैं रोज भिंडी बनवाता था। घर पे रोज एवरी डे भिंडी बनेगी। तो मुझे भिंडी इतनी ज़्यादा पसंद थी। और इफ यू टॉक अबाउट बचपन, इफ यू टॉक टू माय मॉम अबाउट माय बचपन, शी विल से भिंडी खाता रहता था यार बस ये। सो यार भिंडी खा के ऐसे इंसान आ गया आपके स्टूडियो में। और कोई प्रेशर था घर पे और फ्रॉम द आउटसाइड, यू नो, लाइक जैसे कहते हैं कि जैसे बच्चे दे ग्रोइंग अप, they have certain type of pressure, right? अलग प्रेशर, मतलब 10th में इतने परसेंटेज लाने हैं, इतना करना है, उससे आगे जाना है. For you, for example, being funny comes very naturally to you. Did you feel any kind of pressure while doing it? यार आपने बहुत ही important, you know, सवाल पूछा है, and parents who are watching this, I think the only reason me and Bhaiya are able to have our little achievements in life is because there was no pressure on anything. किसी भी चीज़ को लेकर नहीं था, ना ही particular benchmark on marks in school, और you know वो जो restrictions थी कुछ जो valid थी कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, and my father was very particular about it, and my mom used to, मैं मम्मा से पूछता होता था यार पापा डांटते क्यों है इतना, कि अगर जल्दी नहीं उठा तो इसमें क्या हो गया, संडे ही तो है. So she had a very simple sweet explanation to it. She was like जो सोते हैं ना उनकी ना किस्मत भी सोती रहती है. So she said that to me when I was in class 3 maybe. You know, it just remained with me. So pressure जो था वो सिर्फ टाइम पे उठने का था, which was I think was a valid pressure. If you want to perform in today's day and age, आपको एक disciplined life रखनी ही पड़ेगी. So waking up late was never, you know, an option. उस पे pressure था. आपके career choices पे, आपके, you know, otherwise what time you're coming and going, till date we don't drink at all, we've not tried drinking. So वो restrictions थी जो valid थी, but pressure on performing or anything कभी नहीं हुआ यार. I think जो parents कर रहे हैं ऐसा pressurize kids को, it's difficult for the kid to perform. बहुत मुश्किल है. Yeah. So
आप स्टूडेंट कैसे थे? भिंडी के अलावा कैसे पता चला कि मैं बहुत बहुत नालायक था? ओके, आई थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ naughty kid and a misbehaved kid. Yes, of course, I was touch wood performing really well in sports, but I wasn't performing that well, academically. But when you talk about क्लास में मैं स्टूडेंट कैसा था और मेरे टीचर्स जाके पूछोगे, आई कैन गारंटी यू दिस, they will have good things for me to say, they'll have good things about me to say, not today because I've become an actor, even back in the day. जब मैं अगर स्कूल पीटीएम अगर होती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग पे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को डांट पिट रही है कि ये शरारती और मिसबिहेव्ड. आई सेड देयर इज अ बिग डिफरेंस between being misbehaved kid and naughty kid. नॉटी तो होना बहुत अच्छी बात है ना, तभी अच्छी है, तभी तो मस्ती होती रहती है ना. बट उसको तमीज में रख के किया जा सकता है उस शरारत को. आई डोंट नो, लॉट ऑफ पेरेंट्स विल नॉट अग्री टू मी ऑन दिस. मैं कई बार जब अखबार में पढ़ता हूँ ना कि फलानी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज उसने बच्चे को डांटा स्कूल में, माई हार्ट ब्रेक्स यार, बिकॉज आई एम सेइंग आप अपने बच्चे को बोलो कि होमवर्क करके जाए, क्लास में बदतमीजी नहीं करे, तो टीचर ऐसा नहीं करेगी. आप जब होमवर्क करके नहीं जा रहे हो तो क्लास में डांट तो पिटेगी ना. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट माई मेरे खुद के ही आसपास के लोग इससे रेजोनेट कम करते हैं, बट आई रियली बिलीव कि अपना होमवर्क करके जाओ और क्लास में शरारतें करो और बदतमीजी नहीं करो, तो टीचर वुड नेवर से एनीथिंग रॉन्ग टू यू एंड शी वुड नेवर रेज हर वॉल्यूम, शी वुड नेवर. खैर अब तो हाथ उठाना मना ही है. मैं जैसी ये बात होती है ना, मैं अपने नकल्स को देखना शुरू हो जाता हूँ, बिकॉज मेरे को तो बहुत पड़ी है यार. डस्टर से रूलर तो सीधा टूट जाता था यार. रूलर टूट जाता था. मैं रूलर के मेक पे मैं डाउट कर रहा था कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. मे बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा. अगेन मैं जिस दिन होमवर्क नहीं करके गया हूँ उस दिन मुझे नकल्स पे या हाथ पे रूलर पड़ा है, एंड थैंक गॉड उसने पढ़ा है, तभी मैं होमवर्क करता हूँ अपना. सो आई मीन आई केम प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल. सिंपल. सो या. ओके. तो वो वक्त कब आया, व्हेन आफ्टर कॉलेज, आफ्टर स्कूल एवरीबडी डिसाइड्स कि क्या करना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग. करिश्मा कितने साल लगे वो वक्त आने में आपको पता नहीं है. I changed 9 jobs before becoming an actor. Tell us a little bit about that. Beyond a point, रिश्तेदारों में से ऐसा हो जाता है ना कि अच्छा अब ये कर रहा है वो, अच्छा अब ये कर रहा है, अच्छा अब ये कर रहा है. यार मेरा तो दिमाग ही वैसा चलता है कि I want to try everything in life. Don't be shocked if I leave acting one day and I want to just do farming or maybe just do something around clothes maybe, I don't know. So मेरे को हमेशा नई नई अलग अलग चीज़ें करने का मन करता है. अदरवाइज शायद मैं एक्टिंग करते करते होस्टिंग या सिंगिंग शायद नहीं करता, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल इन द क्रिएटिव स्पेस. नॉट नेसेसरली कि वो सिर्फ फिल्म मेकिंग से उसका लेना देना हो. Which was the last job that you remember and you were like, ठीक है इसके बाद मैं ये ट्राई करूँगा, and then that clicked? यार of course last job was radio. I think majorly because it got together the creative energy which was lacking in my other professions and my upbringing in those corporate structures. And उसके साथ साथ थिएटर हुआ, उसके साथ साथ फिल्में शुरू हो गई. That was my last job of a radio jockey. And are you still in touch with those friends? Of course. In touch? What do you mean in touch? I was talking to them right now when I was on the way. I mean, touch wood, I have a lot of friends and I don't know if I can say this like that. I'm very good at keeping in touch with people. Achha. So yeah. Things change once you become an actor, movie stars, and you have lesser time. I don't know. ये एक myth है. 100%. ये आपने जो काम करना है वो आपने करना ही है. आप एक ही दोस्त को हर रोज पूरा महीना मिलते हो और दूसरे को कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है. है ना? जो इंसान कहता है कि मेरे पास जिम नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो कोई पर्टिकुलर चीज. इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज अ पर्टिकुलर थिंग यू कैन रियली डू इट. आज शाम को मैं एक अवार्ड शो होस्ट कर रहा हूँ.
There is no way another actor would have come For on a the same podcast, date. yeah. यहाँ से सीधा मैं होस्ट करने जा रहा हूँ. अच्छा. You know? Yeah. So मैंने उससे पहले एक वर्क कमिटमेंट रखी because we intended to do that. Correct. वो intention थी to come and do 100%. this. 100%. Simple. 100%. Another artist might not have done it. So, I mean, nothing against them. हर एक का अपना एक तरीका है काम करने का. They would have kept it on an easier day, you know, where when there are no more commitments. But हमें लगा कि हाँ ये करना चाहिए, तो वो इंटेंशन नजर आई. तो आप जब आप इंटेंशन दिखाएंगे किसी चीज़ को, वो हो जाएगा. जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे किसी चीज़ को, तो हो जाएगा. तो जैसे आपने कहा राइट कि यू लव ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ एंड यू आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग, विच इज़ व्हाई यू अराइव्ड एट जो आपका पैशन है, एटलीस्ट फॉर नाउ. तो कल अगर फार्मर बन जाएंगे तो वील हैव अ कन्वर्सेशन. किन्नू उगाऊंगा, किन्नू की खेती बाड़ी करूंगा मैं. किन्नू, यू नो, पंजाब में किन्नू होते हैं. लाइक आप कहाँ से हो? बॉम्बे से ही हो? अच्छा. तो पंजाब में अब जैसे मौसम्मी के कजन्स होते हैं, संतरा, किन्नू, माल्टा एटसेट्रा. सो आई डोंट नो, मैं इनमें से उसकी किसी खेती एग्जांपल तो खेत में पॉडकास्ट कर सकते हैं. या तब मुझे धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स का आइडिया हो जाएगा, खेतों में कौन कौन से गाने शूट हुए उसका आइडिया हो जाएगा. करेक्ट. सो या उसकी बातें हो सकती है. सो बिकॉज आपने इतने सारे आइकॉनिक फिल्म्स किए हैं इन अ फनी वे, राइट? लाइक यू दैट टिपिकल फनी गाय. डिड Yeah. यू फील लाइक यू वर स्टीरियोटाइप्ड और बॉक्स्ड इन दैट यार पर्टिकुलर ये वे? तो हर एक की पर्सपेक्टिव की बात है. यू नो, कोई इंसान अगर लेट उठता है तो वो कहता है यार सोता बहुत है. दूसरा इंसान कहता है वो स्किन का बड़ा ध्यान रखता है, स्लीप पूरी करता है. यू नो, किसी चीज़ को किस तरीके, किसी को पॉजिटिवली देखना है, उसी चीज़ को नेगेटिवली देखना है, वो हमारे ही माइंडसेट में है. आप किसी पेंटिंग को देखते हैं, आप कहते हैं क्या है ये, 4 बक्से ही तो बनाए हैं, है ना. सो किसी के लिए वो फ्लैट हो सकती है पेंटिंग, किसी के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत खूबसूरत से निकल सकती है ना. सो उसका इंटरप्रिटेशन किसका क्या है. मेरे लिए आई फाउंड माई स्पेस. यू नो, कितने साल निकल जाते हैं एक्टर्स के लिए टू फाइंड देयर स्पेस. सो आई फाउंड माई स्पेस वेरी अर्ली इन माई career कि okay, I can do comedy, and thankfully things like Berlin Jubilee happened later for people to realize okay, there's a lot more to this artist than only comedy. I mean, then music happened, hosting happened. So धीरे धीरे टचवुड और धीरे धीरे ही वो पन्ने खुले. बहुत अच्छी बात है. अगर उस टाइम पे सभी पन्ने खुलते, शायद I might not have been accepted as a host. I might not have been accepted as a musician. जब लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया उस एक्टर को, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी में था उस टाइम पे, और जहाँ मैं जाऊँ इंसान कह रहा है यार बिकी प्लीज बोल के दिखा दो या दंगल का कोई डायलॉग बोल के दिखा दो. I mean, you only feel happy. You don't feel stressed कि यार लोग यार मुझसे सिर्फ कॉमेडी करा रहे हैं. You know. Yeah, it's a very interesting perspective. It's only life is about that. मतलब आप इस चीज को, अगर हमें किस चीज के बारे में बात करनी है, किस चीज के बारे में नहीं, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, on a date can be called a prep. On a date, I mean, somebody can call it a prep. Somebody can call it कि यार इतना कंट्रोल करके क्यों चल रहे हैं, लेकिन हम तो बातें कर रहे हैं. You know. Okay. So if you and Ayushmann were to headline a film, Yeah. what would the genre be? Comedy, 100%. Because I mean, I think हम दोनों अच्छा हंसते हैं, अच्छा हंसाते हैं. So why not tap onto that? Okay. Yeah. So music के बारे में बात करते हैं because we are in All India Mehfil. Yeah. And we want to go and talk about music and the beats, right? So when you got into this process और आपने ये actually शुरू किया, what was the first thing that started it? Was it like कि emotion पे चलते हैं, ये मुझे अभी feel हो रहा है, इस पे मैं गाना लिखता हूँ, इस पे मैं like I'll sing, or was it rhythm? I think my music journey was so organic that I wasn't trying too hard. I was taking a lot of time to make my music. For example, कुड़ियनी जब मैंने बनाया है, तब मैं दंगल शूट करते हुए वैनिटी वैन में मैंने गाना बनाया था वो. एंड आई हैड अ थॉट इन माई माइंड कि एक लड़का लड़की पेड़ के नीचे बैठे हैं चंडीगढ़ में, और वो काफ़ी टाइम बाद मिले. बचपन में एक दूसरे की दोस्ती होती है, एक दूसरे दोस्ती होती, स्टापू वगैरह खेलते होंगे एक साथ. स्टापू क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्टापू और क्या कहते हैं पिट्ठू ग्राम को?
सांगली नहीं, सांगली तो चेंचन होता है. हाँ ना, नगोरी लगोरी. सो यू नो बच्चे पंजाब में वो खेलते होंगे लगोरी. सो दे हैव मेट आफ्टर लॉट ऑफ, वो प्राइमरी एजुकेशन करने शायद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई और केजी नर्सरी में एक साथ होते होंगे वो. एंड जब वो मिले 10 साल बाद तो उसको देखकर बिल्कुल ही you know, so I create a story, of course, before writing a song. That goes for all my songs I've released so far. Okay. I don't know how other musicians, you know, do it. तो मैं पहले दिमाग में एक स्टोरी बनाता हूँ, because I come from the background of, you know, films and theatre, so शायद उस वजह से तो तब वो बात निकली थी, कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ऐ चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कानी भी छोड़, कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए. सो वो उनके आपस का गिव एंड टेक है. आगे वो कहती है कि अपना नंबर देते हुए जा, एटसेट्रा, यू नो. लड़का कहता है लड़की को, तो उसमें ऑडियो में आवाज आती है डायल करने की, टक 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 टक, एंड देन द सॉन्ग, द फीमेल पार्ट स्टार्ट्स, यू नो, व्हिच इज मुंडे आवे एले नंबर तू फड़, मुंडे आवे मैं भी रहंदी चंडीगढ़, मुंडे आवे टाइम पास दा न सोची, जे करी मेरे नाल कोई ऊंची नीची गोची, वीर जी मेरे फुल ऑन कलेशी, उन्हीं के कोट में होनी है तेरी पेशी. So you know, it's a give and take. I rather call it a musical conversation more than a song. So it sounds like it. Yeah. So I mean, you know, किसी ने एक सवाल पूछा है, उस लड़की ने वो जवाब दिया है. So it's around that majorly. So that's how I normally, you know, do my music. ये आइडियाज आपके पास कब आते हैं? स्टोरी क्या लिखनी है? वो स्टूडियो में फोकस, अच्छा ऐसे ही ये कहीं भी आ सकते हैं. It can really happen when I am, you know, walking around here at work. Otherwise, it can really happen. अच्छा, ज़्यादातर जब आए हैं वो फ्लाइट्स पे आए हैं. Really? हाँ, बिकॉज फोन बंद होता है ना उस टाइम पे. हाँ, तो सोच सकते हैं. हाँ, and I have an OCD of replying to all my messages and calls etc. So जब नेटवर्क नहीं है तो सबसे ज़्यादा आइडियाज आते हैं. एंड आई थिंक वॉशरूम में भी आते हैं काफ़ी बार. So yeah. हाँ, और कौन सा गाना वॉशरूम में आया है? यार बोल दिया. लाइक अच्छा, ट्रेंड ये है कि रिलीज नहीं हुआ वो. तो शायद अच्छा नहीं आएगा. अच्छा. But yeah, having said that, flights majorly. Most of the songs I've released are, you know, उसका जो very thought है, जो seed है, वो फ्लाइट में निकला है और उसकी कुछ पंक्तियाँ लिखी गई थी ऑलरेडी. You know, it's easier to then jam on it. 100%. Okay. तो आपके हिसाब से very honestly, वो जो सच्चाई आती है गाने में, which emotion does it come from? Love, heartbreak, nostalgia, या pain? फिर आती तो heartbreak से, honestly. I think, and people also resonate more with it. I don't know why. I don't know how many people are heartbroken in this world जो इतना ज़्यादा resonate कर रहे हैं. My दादाजी used to say this कि यार अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से नहीं, बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से नहीं आती, धोखे खा के आती है. तो इसलिए अकल तभी आएगी जब बादाम नहीं धोखे खाओगे. तो मैं तो मजाक के बोलता होता था, लेकिन दादू मैं तो बादाम भी धोखे खाता हूँ. तो but yeah, having said that, I think the writing becomes more pure, I would say, when it comes from a heartbreak, and people resonate with it more. कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल तो टूटा ही होता है. So it's not really important कि उसका वो दिल इस समय टूटा पड़ा है कि नहीं. You know, कभी ना कभी टूटा ही होता है. Not आजकल बच्चों को 6th-7th क्लास में, you know, फर्स्ट क्रश हो जाता है. So ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्रश हमेशा हाँ बोले. You know, so when you're 20, you're thinking about 10 years ago. So yeah. So a little bit of nostalgia also. Shayad, maybe. I don't know. But people resonate more with heartbreak songs. Okay. I think
from Channa Meria to any song. Even if I talk about my, one of the songs which is appreciated the most, Zaroor. People have really kind of come and told me कि यार हम दिन में 10 बार सुनते हैं वो गाना. And Spotify पे कुछ 120 million streams, and I sometimes feel that इतना कितना दिल टूटा हुआ है लोगों का, that but having said that, I think that while making that song there was a certain kind of very organic pure vibe in the studio. उससे बहुत फर्क पड़ता है. I really resonate with the energies and the people I collaborate with. So yeah. Okay. ऑटो ट्यून के बारे में बात करते हैं. मोस्ट कंट्रोवर्शियल. हमने सबसे ये पूछ लिया. व्हाट इज द यार इतना डिबेट क्यों? हाँ, मैंने देखा कि आपका ऑटो ट्यून पे सवाल पहले भी एक इंटरव्यू में आया हुआ. बिकॉज़ आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली दैट आई हैव वेरियस एनालॉजीज अराउंड इट. सो इसलिए इट्स फॉर पीपल टू डिसाइड कि कि क्या सही है क्या नहीं. मैं नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये सही. मैं दोनों तरफ के ऑप्शंस दे रहा हूँ. एंड ऑल्सो सी आई एम एन एक्टर फर्स्ट, आई एम अ म्यूजिशियन लेटर, बट ये एनालॉजी बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एनालॉजीज हैं. ओके, जो लोग गाड़ी चलाते थे जिसमें गेयर लगते थे, अभी भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद सम पीपल हैव ऑटोमेटिक अपग्रेडेड देमसेल्व्स टू एन ऑटोमेटिक कार. मेन मुद्दा क्या है कि एक्सीडेंट नहीं, किसी की जान नहीं जाए. यही मेन मुद्दा है ना. सो वो तो कंप्लीट हो ही रहा है. सेकेंडली, लाइक हम खुद ही एज ऑडियंस, ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ प्योरेस्ट एक्टर्स को ही वो दर्जा दिया है. हमने काफ़ी बार जो एक्टर्स कमर्शियल वाइब जानते हैं उनको दिया. वहाँ पे तो नहीं ये सवाल उठता है. द प्योरेस्ट एक्टर्स हु हैव कम फ्रॉम द FTI और NSGs ऑफ द वर्ल्ड, उनकी अंडरस्टैंडिंग सिनेमा की ज़्यादा है. सो मेरा रुझाव उस तरफ है ज़्यादा. मेरे को वो ज़्यादा प्रेरित करते हैं. लेकिन जो नहीं भी आए हैं वहाँ से, ऑडियंस उनको प्यार दे रही है. वहाँ पे तो ये सवाल नहीं उठ रहा फिर म्यूजिशियंस में ऐसा क्यों. किसी एक XYZ A-lister एक्टर की ज़रूरी नहीं है उसका होमवर्क, उसका एक्टिंग का सुर, टॉकिंग अबाउट ऑटो ट्यून पर्टिकुलरली, ज़रूरी नहीं है उसका एक्टिंग का सुर उतना करेक्ट हो जो इतने 10-12 साल की एक शिद्दत से मेहनत करके आया है. बट यू हैव एक्सेप्टेड देम. एंड तो इसलिए इट्स फॉर देम. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत. आई एम जस्ट सेइंग इट्स फॉर देम टू एंड लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार ना कुछ एक दो सिंगर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको लोग ऑटो ट्यून से उनको सेकंड नेम दे चुके हैं, जानते हैं. करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लिख कर जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, I mean, they might not even be singers, कोई एक अच्छा क्लासिकली ट्रेंड सिंगर ये कहकर जा रहा है फिर भी शायद समझ में आता है. और जो इंसान जिसको शायद नहीं पता है कुछ गायकी के बारे में, वो इंसान कह रहा है तो शायद गलत हो सकता है. उसको मैं नाउ एज एन उस आर्टिस्ट के भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और उसको अगला गाना बनाते हुए वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो सकता है. ऑनेस्टली, touchwood, it has not happened to me. Touchwood, the kind of songs I do are very comfortable, in my overall skin and my upbringing in music. तो मुझे जो गाने कंफर्टेबल लगते हैं, जो मेरे को मेरी स्पेस के लगते हैं, मैं वो अपनी तरीके से निभा के जाता हूँ. सो nobody on my YouTube videos or Instagram, they have rather only blessed me with गुड फीडबैक ओनली. बट अगर मैं उन 2-3 म्यूजिशियंस जिनका आपने ये नामकरण कर दिया है, वो थोड़ा सा यार स्ट्रेसफुल है एज एन आर्टिस्ट. हाउ डू यू देन एंटर द स्टूडियो एंड मेक म्यूजिक? जब क्योंकि दैट प्लेज इन योर माइंड आल्सो कि ये, इजंट इट? आप खुद बताओ, अगर कोई इंसान, और इंस्टाग्राम इतनी अजीब चीज़ है, वो खुल ही जाती है वो बंद नहीं होती है, वो खुल ही जाती है. एंड आप you end up reading those comments, and if you're reading that for yourself, it might be disturbing. तो क्योंकि आपने आपके गाने पे you said बहुत सारा प्यार मिलता है. So we have 3 questions and you have to sing the song. ठीक है. Which is your personal favorite song? Here there are 2. कुड़ियनी मैं already आपको सुना चुका हूँ. Second जो है, that one is called लफ्ज़ा. A lot of times people say कि यार लफ्ज़ की अहमियत के बारे में लोग काफ़ी बात करते हैं. पता मैनू तावी पुछा हाल क्यों बहाने लब लब के मैं लावां तैनू कॉल जो आवाज़ तेरे लफ्ज़ां ने बुननियां कहण साज ओ भी सुननियां खाना पीना सोना सब भुल्लियां मैं तेरे उत्ते
ਡੁੱਲੀਆਂ ਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ so yeah, that's my one of my favorite songs जो मैंने गाया है और बनाया है so yeah I mean as I told you I do songs which are comfortable to my throat to my I'm not a classically trained singer and बट जो गाने अभी तक मैंने किए हैं टचवुड उन सबको प्यार मिला है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव अ म्यूजिकल जर्नी गोइंग aside by the side my apart from my acting journey तो वो गाना जिसपे सबसे ज्यादा प्यार मिला है आपको बैठी किते बदला तो दूर होनी है मेरे वांगू भी मजबूर होनी है सुन दी तां गल भी जरूर होनी है सुन दी तां गल भी जरूर होनी है so yeah And what about your latest song? Yeah, latest song I've just released one. It's Okay. called Sundarama. I think when you are in love, na, you don't feel like muting each other. आप चाहते हो बातें चलती रहे, है ना? Don't go anywhere. Coffee एक और you often happens ना एक और coffee हो जाए, Yeah. you know. और if you're sitting over beer एक और beer हो जाए. I don't know. I mean, जो जिस चीज़ पे भी आप jam कर रहे हो, you keep talking and keep listening to each other and it's just so beautiful to listen to each other's thoughts. चाहे वो मैं कह रहा हूँ किसी भी रैंडम चीज़ को भेलपुरी को लेकर हो रहे हो आपको लगता है कि यार पता है भेलपुरी में ना वो तीखा ज़्यादा रखती है वही आपको क्यूट लगना शुरू हो जाता है जबकि उन चीज़ों को लेना देना नहीं है सो यू रियली वांट टू लिसन टू ईच अदर सो द सॉन्ग इज कॉल्ड सुंदरमा सुनदा रवा तेरियां गल्लां बैठा रवा मैं तेरे कोल शाम सवेरे सुपने तेरे तेरे जहानी कोई हो कालियां रातां नहीं ए जो बरसातां नहीं पिछे नहीं सकदे मैनू मोड़ कोई बुलावे ना मैनू सतावे ना नैना दे बूहे रख खोल सुनदा रवा तेरियां गल्लां बैठा रवा मैं तेरे कोल Thank you so much. Okay, और because you spoke about love and it's such a beautiful song. Yeah. आपके लव स्टोरी के बारे में बात करें. Oh wow, love it. The personal connect. आपकी लव स्टोरी का पहला चैप्टर Yeah. कैसे शुरू हुआ? यार I met my wife at Shamak Dawar dance No classes way. in Chandigarh. And How old were you? I was in college first year अच्छा. and she was in 11th. So she was 2 years younger than me. हाँ. And we were dancing on a song from Jodha Akbar. And it was, I think, वही बोल रहा हूँ ना यार गाने कई बार ऐसे होते हैं आप ना अपने आप बैकग्राउंड म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है you look at somebody's face and you like oh wow she's so pretty और वैसा वैसा कोई लड़के वाले बोल सकते हो oh my god कितना सुंदर बॉय है so yeah I mean I think that's how it started and then we shifted to Delhi together me for my first job and she shifted for her college she went to Hindu college and I started doing radio in Delhi and yeah I mean काफ़ी अच्छी लाइफ रही है तब से अब तक Yeah. What is the most special memory? Yeah, most special memory was regularly going to Bangla Sahib Gurdwara when we were in Delhi. बहुत regular, I mean, almost every weekend we used to go there. So that really got us together spiritually, I would say. तो एक हम ये जो myths के बारे में हम बात कर रहे थे पहले ये बहुत ही अब common कौन सा myth तोड़ना है आपने? नहीं common perception है right कि मैं ये दारोमदार लेने के लिए तैयार हूँ myth तोड़ने के बताइए बहुत ही common perception है कि a male has to be strong रहना चाहिए strong दिखना चाहिए strong होना चाहिए what do you think about it because जब हमने ये conversation की है बहुत सारे लोगों के साथ है there's a beauty in being vulnerable of course or to be soft of course what is your perception Karishma, first of all, I'm very happy that you picked up this question. I think it's something which we all need to understand, especially
your audience who, you know, watch your episodes with so much of एक particular fan base है आपके, you know, shows का. जब मैं देख रहा था आपका show तो मुझे लग रहा था कि यार हर तरीके की बात हो रही है. एंड ये जो आपने मुद्दा उठाया, आई थिंक यार देखो मैं तो बहुत रोता हूँ. आई मीन बॉयज़ को कुछ मर्दाना होना चाहिए या वो रो नहीं सकते एटसेट्रा वगैरह. आई डोंट रेजोनेट विद दैट थॉट एट ऑल. आई एम वेरी इमोशनल इन लाइफ. ये जो बाइफिकेशंस हैं यार, ये बहुत ही अजीब तरीके से इतनी ज़्यादा इनबिल्ट हैं हमारे अपब्रिंगिंग में. ये इतनी ज़्यादा हमारे सोशल नॉर्म्स में इतने खतरनाक तरीके से जड़ तक घुसी हुई हैं वो, कि मेल को कैसे होना चाहिए और फीमेल को कैसे होना चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडेज जनरेशन इज फाइनली ब्रेकिंग इट. आई एम वेरी हैप्पी दैट you see females riding a bike. I feel very happy about it. I think जब तक हम वो stereotypes नहीं तोड़ेंगे तब तक the evolved, you know, citizens of the country नहीं निकल के आ पाएंगे. मेरे ओवरऑल टोन से आपको पता लग रहा होगा that how upset I am that people have bracketed the genders in such a way. It'll take time because ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एजुकेशन से, थोड़ी बहुत आपके घर के अपब्रिंगिंग से, थोड़ी बहुत आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स आप किससे शेयर करते हैं, वहाँ से निकल के आएगी. इट टेक टाइम बट आई थिंक विल रीच देयर. और व्हेन यू नो वी टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, बहुत सारे अगेन यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, क्योंकि अब सारे लोग डेटिंग एप्स पे है एंड यू नो इट्स वेरी इजी टू काइंड ऑफ स्वाइप राइट एंड एक नया ऑप्शन है आपके लिए. नई ऑप्शन भी है, नई टर्मिनोलॉजी भी है, स्वाइप राइट. एग्जैक्टली. तो आपके हिसाब से इज दैट थिंग यू नो वेयर इट यूज्ड टू बी दैट यू वांट समबडी एक स्टेबल सिक्योर लड़का या लड़की, और डू यू थिंक कि आज का जनरेशन टॉक्सिसिटी की ओर बढ़ रहा है? यार मेरे को ये ना बात थोड़ी सी अजीब लगती है ये बोलनी, बट आई हैव अ वेरी वियर्ड थियरी टू दिस. असली में तो एक लड़के को लड़की की तरफ से, लड़की को लड़की की तरफ से, whosoever is in a relationship, they of course need certain kind of responsible, happy soul to you know be with. But I have a feeling that a lot of people have they crave for problems. मुझे लगता है कि वो ना दे अट्रैक्ट, उनको चाहिए कि कुछ ना पंगा होता रहे, कुछ ना हलचल लगी रहे. So this is what I've realized. They want drama, and I think that's how they end up doing this in their relationship. Otherwise, सही तरीके से नहीं, अगर सही you know जवाब इसका हो तो of course you want someone who is responsible, very to the point, hardworking, etc. But then there is no drama. Dal chawal. So I think people love drama. Yeah, that's very, very true. Yeah. Let's talk about the most iconic, जो Maddock horror film series. अरे वाह, क्या बात है. And you've been part of such an expansive universe. Your brothers also joined it now. Yes. How does it feel to participate in this kind of like a massive Yeah, production? first of all, kudos to Dinesh Vijan and Amar Kaushik for, you know, putting this space of filmmaking on the map. Never seen, never heard. किसको पता था कि हम अपनी ऐसे एक पूरा एक यूनिवर्स तैयार हो जाएगा, है ना. हमारे फिल्म मेकिंग में इतने सालों से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड इस यूनिवर्स का सबसे अच्छी बात यह है कि यार ये बड़े पर्दे पे देखने का मज़ा आता है. तो इसलिए एटलीस्ट व्हेन पीपल यूज्ड टू से कि यार OTT के आने से फिल्म्स अब कम देखेंगे लोग, यू नो, दे हैव ऑल्सो उस स्पेस को भी उन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया. एंड आई थिंक ईयर आफ्टर ईयर, बैक टू बैक ऐसी कमाल की चीज़ें लेकर आना, ऐसे कमाल के वर्ड्स लेकर आना, it's really commendable. Now coming to the fact that being a part of it, I think as an actor you only want to do different things. और मैंने आपको बोला कि यार मेरे को तो हमेशा रोज़ अलग अलग चीज़ें करने का ही शौक है. अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग भी 4 चीज़ें और करने का शौक है. That's how I want my life to be. और अगर एक्टिंग के विद इन ही अगर उसमें भी अलग अलग चीज़ें करने को मिल रही हैं, especially something like horror comedy, I think it really
helps you to become a better artist. It helps you to you know have energy बनी रहती है कि अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिल रहा है. So yeah, and then more than that, if I can go back to Stree One days, I think Raj and Abhishek and Shraddha and Pankaj ji, it just became such a big family. Only talking about actors right now. It became such a nice, happy, big family that you were craving to go back to Stree to set. Wow. Okay. Now we have a rapid fire. Shoot पर आज तक सबसे legendary set food कहाँ मिला है? यार all the ad films we go for, वहाँ पे एक caterer आता है मुथुस्वामी. हाँ, yum. यार Best. suddenly मतलब मेरे मुंह में डोसा सोच के पानी आ गया. So yeah, even when I've had my lunch, तब भी. किस एक्टर के घर का खाना आपने खा के जेन्युइनली फील किया कि इसको अवार्ड दे? यार मेरे साथ खाओ इंसान ऑलमोस्ट हर घर का खाना खा चुका है, आ चुका है घर मेरे, बट फारा के घर का खाना सबसे बेस्ट है, नो मैटर व्हाट. बॉम्बे और दिल्ली, व्हिच हैज बेटर फूड? आई नो दिस इज रैपिड फायर, लेकिन मुझे इस सवाल में थोड़ा समय लगाना है. मुझे ऐसा लगता है कि ये डिबेट ना थोड़ा सा इनवैलिड है. ओके. आई टेल यू व्हाई यू एक्सपेक्टिंग कि बॉम्बे में आपको अच्छे छोले भटूरे मिले? क्यों मिलने चाहिए? यहाँ की वो डिश ही नहीं है. आप पंजाब जाते हैं, वहाँ पे आपको परांठे के साथ लस्सी मिलती है. मेरा एक दोस्त है यहाँ पे बॉम्बे में, वो मुझे कहता है, मेरा नेबर, यार मैं पंजाब जाता हूँ ना, मुझे यार 4 परांठे खिलाने के बाद लस्सी पिला देते हैं यार, मेरे से नहीं पी जाती इतनी लस्सी यार. He doesn't enjoy it. Of course he wouldn't. It's not a part of his upbringing. It's a part of my upbringing or his wife's upbringing. उनको पसंद है ये. We were shooting लुक्का छुपी इन ग्वालियर. वहाँ पे सुबह सुबह हमने नाश्ते में देखा, सड़क पे मिल रहा था बहुत रश. हमें लगा पता नहीं क्या हो गया. मुझे सच में लगा कोई हादसा हो गया, लेकिन वहाँ मिल रहा था पोहा जलेबी. अब किसी को आप पंजाब में बोलोगे कि पोहा और जलेबी एक साथ खानी होती है, वो दे विल रिफ्यूज टू ईट इट. ठीक है ना, बट मैंने वो खाई. इट इज़ फैंटास्टिक, यू नो. तो इसलिए कुछ चीज़ें आपके अपब्रिंगिंग का पार्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि यार यहाँ का खाना और वहाँ का ये और ऐसा और वैसा. You don't get this vada pav in Delhi at all, no matter what. You know, I love Bombay के vada pav. थाने स्पेशली जाता हूँ वड़ा पाव खाने. So, I mean, ये डिबेट मुझे थोड़ा सा इनवैलिड लगता है. ओके, फेयर. बॉम्बे की फेवरेट डिश? वड़ा पाव. कहाँ पे? थाने में 2-3 जगह हैं बहुत कमाल की. लो, थाने निकल गए. थाने में 2-3 जगह हैं वड़ा पाव की. बट हैविंग सेड दैट, वर्सोवा में हाकिम जालिम के पास एक बहुत कमाल का वड़ा पाव मिलता है. ओके. लाइक 100 meters फ्रॉम हाकिम जालिम. हम ढूंढ के वहाँ पे लिंक डाल देंगे. ओके. आपका ड्रीम डायरेक्टर जिसको बिना पढ़े स्क्रिप्ट की आप हाँ बोलेंगे? बिना पढ़े स्क्रिप्ट, वो तो खैर थोड़ा मुश्किल है बिना पढ़े स्क्रिप्ट. बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ legendary directors, and we have been fortunate enough to be in the same generation and era from संजय लीला भंसाली टू राजकुमार ईरानी. आई मीन बहुत सारी लिस्ट है अभी तो, मतलब मैंने बहुत कम फिल्में करी हैं. सो बहुत लंबी लिस्ट है टू जहाँ मैं चाहूँगा कि मुझे कास्ट किया जाए उनके वर्ल्ड में. Okay. आपका सबसे वियर्ड फैन एनकाउंटर? एक इंसान ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिले. उन्होंने बोला कि यार मेरी वाइफ को ना आपके साथ और आपकी वाइफ के साथ और आपकी डॉटर के साथ पिक्चर क्लिक करवानी है. And I normally don't include, my family in pictures, etc. And they don't feel comfortable. More than me calling the shot on this, they don't feel comfortable. And my daughter is very small right now, so she's, उनको इस चीज़ से एक्सपोज करना शायद सही भी ना हो. तो मैंने उनको मना कर दिया इस बात से कि यार कि I can have a picture click with you. My wife and my daughter might be uncomfortable. Let's not, And ऊपर से एयरपोर्ट है, ऐसा भी नहीं कि बैठ के खाना खा रहे हैं कि चलो यहीं बैठे हैं 20 मिनट, निकल रहे हैं हम कहीं के लिए, है ना. So then the husband and the wife mentioned, he was like, यार वो ना आपको और आपकी वाइफ को दोनों को फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे एक एक चीज़ स्क्रीनशॉट करके भेजती हैं. आपकी वाइफ ने करवा चौथ पे कौन सी सब्यसाची की साड़ी पहनी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दिवाली पे पता नहीं कोई उन्होंने कुछ बात बोली. एंड देन उन्होंने आपकी डॉटर के नाम पे अर्जोई पे पूरा रिसर्च कर रखा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये वगैरह. शी रियली she says कि if I have a daughter, I want to name her Arzoe. So I thought it was very special Sweet, and it was very sweet and it came from a good place, So then we got a picture clicked. क्या अभी रियल लाइफ में स्टॉक हो चुके हैं?
Like somebody has talked to you. I think as an artist, it's not possible कि कोई इंसान आपको It फॉलो is नहीं not. कर रहा हो, है ना? नहीं, but like very हाँ, creepily, नहीं right? मतलब Like यार वही बोल रहा हूँ, unexpected. वही बोल रहा हूँ आपको, वही बोल रहा हूँ आपको कि when you are, you know, an actor who is few films old and few songs old and you know, जिसका काम लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप जितना मर्जी किसी इंसान को तस्वीर देने के बाद वहाँ पे थैंक यू बोलना चाहें, वो थैंक यू वहाँ तक होता नहीं है. दे वांट टू वो एयरपोर्ट में चढ़ाने, फ्लाइट चढ़ाने तक, you know, they want to be with you. And you know, honestly, having said that, all this is byproduct of becoming an artist. Right. You should always take it as a pinch of salt. You should always rather be happy about things that there are people who are, you know, who love you so much. But having said that, of course, there is a line जो क्रॉस नहीं हो तो बेहतर है. तो किसी ने इतना कुछ ऐसा परेशान नहीं किया. जब हो रहा होता है तो आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं. And more often than not, they understand. Because I mean, because I'm a male artist, you know. तो ये समझना दूसरे इंसान के लिए आसान है. I know the problem can be 10x With on the the other female, side. yeah. Yeah, absolutely. So I haven't experienced that, so I don't know what to comment on that. Splurging के बारे में बात करते हैं. ऐसी कोई stupid चीज जिस पे आपने बहुत सारे पैसे उड़ा दिए. यार मैंने एक बहुत महंगी गाड़ी ले ली है and I hate myself for it. मेरे को रोज I think I'm not going to do that ever. कौन सी गाड़ी? नहीं यार. No, we are, no. Okay. यहाँ तक छोड़ देते हैं. This expression will tell you that I hate it. I mean, I think beyond a point आपको एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है ना? आपको लगता है कि यार ये कर लेते हैं, ये गाड़ी में बड़ा मजा आएगा, ये वगैरह. सेम ही है यार सारी. हाँ, सब सच में. पहुंचना तो एक ही जगह है. Okay. We never have I ever Bollywood edition. Never have I ever fangirled or fanboyed over a co-star. I would have yaar. I mean, I've worked with some terrific actors. You have to give us names now. Who have- I mean, my very first film was with Manoj Bajpayee, Anupam Kher, Anu Kapoor, Vijay Raj, KK Menon. I mean, there was so much pressure for me to perform. Saath Uchakke was the name of the film, and I mean, I fanboyed every day. Yeah. Never have I ever DM'd another actor first. The first actor I DM'd was Sharib Hashmi. I saw one of his, you know, films. I think Filmistan, it was called Filmistan, na? That was the first time I messaged someone. And I loved him in the film. यार मेरे पिताश्री कहा करते थे जब भी किसी का काम पसंद आए ना उनको बता दो कि बहुत अच्छा किया है. It only brings out the best in each other, you know. So yeah, I mean, I would have messaged a few more people that way. Never have I ever been starstruck on set. I would have, yeah, of course. I just told you. Okay. हाँ. Never have I lied in an interview. आज तो नहीं किया. That's important. Hopefully. It's okay. Yeah. Never have I ever watched my own movie and cringed. Honestly, I can't listen to my songs and my movies. I can't watch my movies. मुश्किल है थोड़ा. Never have I ever ghosted someone. No, never. Okay. Never have I ever had a crush on a co-star. Yeah, Rajkumar Rao. Love you, Paji. I love you. Never have I ever danced to my own song at a party. I have, but I hate it. Yeah, I It's don't- weird. Yeah, it's weird. It's very weird. Okay. All the weddings I go to, they play Kudiyeri. So As soon as you enter, वो बजने I know, लगता है. and I was like, यार अभी तो मैं फ्लोर पे आया हूँ, अभी तो मैं स्टेज पे आया हूँ, wherever you enter Yeah. from, है ना? अगर परफॉर्म करने गए हो तो स्टेज पे, अगर एज गेस्ट गए हो तो फ्लोर पे. And they play Kudiyeni and I get little मेरा कहा okay अच्छा अपने गाने पे ही डांस करना है. I want to dance on Diljit songs यार, come on. So yeah. Okay, amazing. That brings us to a very special part of our महफिल. क्योंकि ये महफिल है, there is no true महफिल without multiple artists, right? Of course. तो हम अब ऐसे आर्टिस्ट को बुलाएंगे who wants to perform his original song अरे वाह क्या बात है. and take your feedback, take your opinion, and also my maybe God. sing with you and jam with you. क्या बात ठीक है, तो चलो. उनको बुला लेते Let's हैं. go. So now we are at the most special segment. We have a musician here जो आपके लिए गाना चाहता क्या है. बात तो है आप यार. Hi man, अपार शक्ति, क्या नाम आपका? सुकृत सुकृत. Yeah. Looking forward man, कहाँ से हो? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, चंबा डिस्ट्रिक्ट से, और बहुत ही रिमोट एरिया में मेरा गांव है, बिल्कुल कश्मीर बॉर्डर के साथ. और सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, म्यूजिशियन हूँ. बीन डूइंग म्यूजिक 2014 से प्रोफेशनली एज अ गिटार प्लेयर. All the best man. क्या बात है. तो क्या सुनाने वाले हो आज? मैं आपको अपना पहला गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है तू क्यों. Okay. So, You written it, composed it? मैं अरे वाह. चलिए, let's go. ठीक है.
तू ख्वाबों ख्यालों में ही होती थी रूबरू, क्यों इन सपनों की दुनिया में ही करती थी गुफ्तगू। आँखों से तेरी जो पूछा था मैंने कि सच होंगे सपने जो देखे तुम्हारे, इन रेत के टीलों पे महल हमारे, और कहते कहानी ये फूल भी सारे, तो क्यों बारिश की बूंदों में नम है ये आँखें ही क्यों, भंवरों की फूलों से ये बेवफाई है क्यों। हो, क्यों सागर में डूबे ये सारे वहम, क्यों इन लहरों में डूबे ये सारे जख्म, भूल गया खुद ही। रातों के सायों में सदा एक तुम्हारी, फिर भी क्यों मुमकिन ना बात हमारी, तुमने तो वक्त को ठहरा के मुजरिम हाँ लिख दी सन्नाटों में सांसें हमारी, ये क्यों बारिश की बूंदों में नम है ये आँखें, ये क्यों। कैन यू गाइस सिंग विद मी दिस छोटा सा लाइन है, बताओ क्या? सिंपल सा। बोलो। बारिश की बूंदों में नम है ये आँखें ही क्यों। ओके। बारिश की बूंदों में नम है क्यों, नम है ये आँखें क्यों, नम है ये आंखें क्यों, बारिश की बूंदों में नम है ये आँखें ही क्यों, आंखें क्यों, भंवरों के फूलों से ये बेवफाई है क्यों। ठीक है। बारिश की बूंदों में नम है ये आँखें क्यों। लवली, एक बार दोबारा ले लो। ठीक है। बारिश की बूंदों में नम है ये आँखें क्यों। क्या बात है, बहुत प्यारी लाइन है यार। भंवरों की फूलों से ये बेवफाई है क्यों। क्या बात है, वेरी नाइस यार सुप्रीत, फैंटास्टिक। पहली बात तो जो आपने शुरू में ही तू और गुफ्तगू और रूबरू का जो काफिया बिठाया था, बहुत करेक्ट था। और ऊपर से सबसे अच्छी बात ये थी, मैं जब एज एन आर्टिस्ट कोई म्यूजिक सुनता हूँ, आई डोंट वांट टू गेस द नेक्स्ट लाइन और द नेक्स्ट काफिया। इफ आई कैन, फिर मुझे लगता है कि वो न्यू राइटिंग नहीं हुई, फिर वो पता लग कि पहले सुना हुआ है वो, तो यहाँ गेस नहीं हुआ था। और जो आपने बीच में डाला है कि भंवरों की फूलों से ये बेवफाई है क्यों, एक फूल पे बैठते दूसरे फूल पे बैठते। बहुत अच्छी लाइन है यार, मतलब थैंक यू, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। बहुत अच्छा लिखा है यार। तो घर पे कोई म्यूजिक करता है यार? नहीं, मैं पहला ही हूँ। अच्छा, वाह जी वाह, फर्स्ट जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस। फिर उसके बाद मेरा भाई भी, मतलब मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी फर्स्ट ईयर में, ओके, बट देन मेरे भाई ने भी मास्टर्स करने के बाद म्यूजिक ज्वाइन कर लिया। अभी वो भी किसी सिंगर के साथ ही बेस प्लेयर है। अच्छा, ओके। बट घर पे अदरवाइज कोई अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी कोई गाता नहीं? मैंने ऐसा सुना कि मेरे नानू पोएट थे, बट मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं उनका लिखा हुआ। ओह अच्छा, क्या बात, पर मैंने सुना था ऐसा। वाओ, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू मैन। Thank Pleasure you. meeting you. Thank you so much. Thank you Karishma for making me meet a young musician यार। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है वो। चलिए, I have another song if you have some time. सुना दो यार। ठीक है।
आई थिंक यू लाइक दिस वन मोर. ये काफ़ी फन सा गाना है. इस गाने का नाम है ये लड़की. Okay. और सीधा गाता ही हूँ. ये मोस्टली आई होप सारी लड़कियाँ इसके साथ कनेक्ट करेंगी. बातें दुनिया भर की उसके दिल में है हजार, फुर्सत ही नहीं. वो चाहे किसी को भी पल में बस अपना बना ले, ज़हमत ही नहीं. वो चाहे तो रोक ले फिजाओं को, बस पलकों को झुका के झुका दे ये आसमां. किसी की भी मुश्किलों को बस पल में भुला दे जो वो मुस्कुरा. हाँ लड़की ये अजीब है पर दिखती तो हसीन है, और दिल में है क्या क्या पता. उल्टा सा ही सीन है पर काफी रंगीन है, और दिल में है क्या क्या पता. क्या मुझको चाहती है ये, क्यों शर्माती है ये, क्यों मुस्कुराती है ये, मुझको भी चाहती है ये. दिन भर सोए रहना इसकी आदतों में है, खोए ही रहना इसकी फितरतों में है. ये तोड़ दे सब कुछ ही गुस्से में, बस यूं मुंह को फुला के, नखरे भी बेशुमार. किसी की भी मुश्किलों को बस पल में भुला दे जो वो मुस्कुरा. क्या बात है. Very nice. So Thank you. Lovely to see you, man. Sukrit, God bless you, man. Same here. क्या बात है. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू. आपने Pleasure is all mine, आप इस Grishma. महफिल में आए और आपने महफिल बनाई, सो थैंक यू सो मच. महफिल तो जो देख रहे हैं उन्होंने बनाई है. They all are a part of it. Before you Thank leave, I will request you to please sign our guitar. Oh wow, what are you saying? Yes. Love. Another first person to sign. Love it, love it, love it. Here you Thank go. you. Thank you so much. Thank you so much. Lovely to see you all. Yes. Here you go, ma'am. You will do. I have many यहाँ रख things. दूँ? Yeah. यहाँ रख देता हूँ. Amazing. Thank you. Sure. Thank you guys. Lovely to see you all. Thank you.